Hey there, amazing viewers, welcome to YouTube channel The Scholarship Guidebook, your passport to a world of educational possibilities. I'm excited to embark on this enlightening journey with you, where we'll explore the keys to unlocking scholarships and paving the way for your academic success. In today's video, we will delve into the details of the application process for the University of Camerino, Italy Scholarship 2024. Throughout the video, I'll provide comprehensive information on the scholarship summary, financial benefits, documents required, and the step-by-step guide on how to apply. Moreover, I've prepared an online apply video guide specifically for students who may encounter challenges with the online application process. But before we dive into the video, I encourage you to subscribe to my channel for future updates. If you find the content informative, a thumbs up would mean the world to me. And, of course, if you have any questions, feel free to drop them in the comment section below. Your engagement and support are immensely appreciated. Scholarship overview. International students have the opportunity to pursue bachelor's or master's degrees in Italy through fully funded scholarships for the 2024-2025 academic session at the University of Camerino. This exceptional opportunity requires no IELTS exam or application fee. With a notably higher acceptance rate compared to other Italian universities, it offers improved prospects, especially for those with a lower CGPA. Scholarship summary. The University of Camerino extends a fully funded scholarship opportunity for bachelor's, master's, and one-tier master programs, welcoming applicants from all nationalities. The scholarships cover all academic expenses, providing a remarkable chance to pursue education in Italy. Interested individuals should mark their calendars as the application deadline is set for March 15, 2024. Financial benefits. The scholarship offered by the University of Camerino provides comprehensive support, covering full tuition fees for selected programs. Additionally, recipients benefit from complimentary university accommodation, complete with meals. The package also includes medical insurance for the duration of the study period. As an added financial support, students will receive a monthly stipend of €900, enhancing their overall experience while pursuing their academic endeavors at the University of Camerino. Documents required. To apply for a bachelor's degree at the University of Camerino, you'll need to provide a copy of your passport, a high school diploma, evidence of secondary education, and an English proficiency certificate. For those pursuing a master's degree, the required documents include a passport copy, a certificate of your bachelor's degree, transcripts of records, and an English proficiency certificate. Ensure you have these documents ready and meet all application criteria for a smooth admission process. How to apply. To initiate your application process, please complete the pre-admission online application. You can access the official website through the provided link below. How to apply online video guide. बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये आपकी बैचलर एप्लीकेशन ओपन होगी। और अगर आप यहाँ पे मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए मास्टर एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम बैचलर या मास्टर के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एप्लीकेशन सेम है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको फिल करके बता देता हूँ। अच्छा, ये जो पोर्शन है आई नीड अ स्टडी वीज़ा, तो यहाँ पे यस क्लिक करें क्योंकि हम आउट ऑफ इटालिया है या यूरोपियन है तो हमें वीज़ा चाहिए, तो हमने यस पे क्लिक किया। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो मैंने कहा था कि पासपोर्ट की जो फोटो है वो उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे ये चला जाएगा और वहाँ पे आप फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप फिर इस प्रोसेस को करते हैं। मैं जस्ट एज अ टेम्पलेट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करने के बाद नीचे आप आएंगे। यहाँ पे PDF फाइल जो होगा अगर वो आपकी 2 MB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, लेकिन आप इसकी तस्वीर PNG PDF सब कुछ सबमिट कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। यहाँ से आप अपनी मास्टर डिग्री कोर्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इटालियन को चूज़ करेंगे तो आपको एडमिशन के दौरान फिर आपको इटालियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपको इटालियन नहीं आती तो इटालियन कोर्स कभी चूज़ ना करें, इंग्लिश में कोर्स जो है वो चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे चूज़ किया है कंप्यूटर साइंस MSc। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं 2024 में ग्रेजुएट हो रहा हूँ या 2022 में मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को अगर वेब यहाँ पे लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा यूनिवर्सिटी पेशावर। मैंने सर्च किया, इसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद मेरे पास ऊपर एक लिंक आएगा, और फॉर एग्जांपल ये लिंक मेरे पास आ गया। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास लिंक हो गया। अब इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे BSc सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा जो है आपका वो अपलोड करें, यानी आपकी जो सर्टिफिकेट हैं, जो डिग्री के जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करें, और इसके बाद BSc का ट्रांसक्रिप्ट जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अपलोड करें। एप्लीकेशन के दौरान जब रेड साइन आता है तो इसका मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये आपने ज़रूर सबमिट करना होता है। जिसके पास ये रेड वाला निशान नहीं आता तो इसका मतलब है वो ऑप्शनल है, आप उनको कर सकते हैं। अगर ना भी हो वो चीज़ अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अपने BSc डिग्री का जो कंटेंट है वो अपलोड करना है, उसका फर्स्ट पेज जो है वो देना है। अब इसका लिंक तो आपके पास नहीं होगा, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जो है वहाँ से हूँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को चूज़ किया। इसके बाद मैंने एकेडमिक डिपार्टमेंट को चूज़ किया, यहाँ पे आ गया मैं एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे मेरी कंप्यूटर साइंस सीट थी, जहाँ से मैंने बैचलर किया है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस को यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ, और कंप्यूटर साइंस से मैंने चूज़ किया। अब जो एकेडमिक जो प्रोग्राम है, जो बैचलर डिग्री के दौरान या आउटलाइन जो है जो हमें पढ़ाया गया है वो यहाँ से मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर क्लिक करना है। ये आप अपनी हर जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है वहाँ पे जाए, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाए, डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc, MSN, PhD, इसका कोर कंटेंट जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस लिंक को कॉपी करके वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे हमने वो लिंक पेस्ट कर दिया। इसके बाद फाइनल ग्रेड हमारा कितना है, यानी जो आपकी डिग्री CGPA कितना है फाइनली, यानी 3.2 है। 3.2 फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आउट ऑफ 4 GPA टोटल है, और मेरा 3.2 मैंने लिया है। क्रेडिट आवर कितना है ये आपको आपकी बैचलर जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर ये डिटेल आपको तमाम मिल जाएगी। मैथमेटिक्स की क्रेडिट कितनी है, कितने सब्जेक्ट आपने मैथ्स के अंदर लिए है, कितनी फिजिक्स के अंदर लिए है, कितनी कंप्यूटर साइंस के लिए, कितने स्टैटिस्टिक्स के। तो ये आपको BSc के अंदर जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर आपने इनमें से कौन कौन सी कोर्स की कितनी क्रेडिट आवर ली है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 6 क्रेडिट आवर लेता हूँ, यहाँ पे भी 6 लेता हूँ, यहाँ पे 9 लेता हूँ, यहाँ पे 8 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ। तो ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करें जो आपकी डिग्री के अंदर मौजूद है। इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करें, अदर पे क्लिक करें, और अदर के बाद आप यहाँ पे सर्च करें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास IELTS है, तो यहाँ पे आप IELTS को चूज़ कर सकते हैं। अगर IELTS या कोई चीज़ ये नहीं है जो यहाँ पे मेंशन है, तो विदाउट IELTS जो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है आपको आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से मिल जाएगा, वहाँ से इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी है, तो ये बेसिक लेवल होते हैं, और C1 जो है ये प्रोफेशनल होते हैं। तो आप B2 चूज़ करें, B2 मेरे ख्याल में यहाँ पे रिकमेंडेड है। आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लिया है उसको यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करें और इसको अपलोड करें। यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ आ जाए। पोस्ट ग्रेजुएट या MSc या PhD एट्सेट्रा जो अगर है तो उसको एंटर करें, नहीं है तो उसको छोड़ें।
नॉन ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसको भी मेंशन करें। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स है जो मिसिंग है या आप लेट प्रोवाइड करना चाहती हैं, कोई कंसर्न है जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो यू कैन राइट इट हियर। और इसके बाद आपने आई एग्री टू द ट्रीटमेंट ऑफ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद आपने सबमिट करना है। इसी तरह सेम प्रोसेस आपने बैचलर डिग्री के लिए भी कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। 1 महीने के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर रिजेक्शन आएगा या एक्सेप्टेंस आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो फर्दर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देगा कि ये स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ये अब शुरू होगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 300 यूरो ट्यूशन फीस, तो मेरे ख्याल में ये मोस्टली जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लोग 14-20 हज़ार पे जा रहे हैं, तो 300 कुछ भी नहीं है। तो वो आप प्रोवाइड करें तो आपकी चांसेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू स्कॉलरशिप। बट आप स्कॉलरशिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी उस वक्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि हमारे पास 2 स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको स्टूडेंट सर्विसेज की तरफ से जो है वो मिल सकती हैं। तो ये यहाँ पे स्कॉलरशिप यूनिकॉर्न सर्च करें तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल सकती है। देखिए ARDIS एंड अदर स्कॉलरशिप्स, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे भी मेंशन है, आप वेबसाइट पे खुद देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच